Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. What were we discussing in last class? We had just started with something basics, right? For those who are not there. Everyone, please join quick. We had discussed certain things about why we are using Java, why what it is based on the concept of your object-oriented programming. The three main principles behind it, not very detailed, just an introduction. As polymorphism, firstly your encapsulation, then comes your inheritance, then comes your polymorphism. These three things form your basic principles of object oriented programming, and the key element here being, the main concept here being in OOPS, is your abstraction, which is hiding the details and only showing the main interface to the user, right? So we talked about what is an object. We're taking an example of simple real life objects, such as one object can be your types of cards, right? So it is something which is just a bundle of your data and its behavior, right? And we talked about what is a class. Class is basically forming your concept of, based on your concept of encapsulation, where things which behavior and data which are of same type, they are being bundled together in the form of a in your encapsulated together in a class. Like we are taking a very simple example of a car, right? Where your state of this is a object, and it is defined by its states and behavior, where states can be its color, brand, weight, model, and behavior can be the activities or the things which it can perform. Like what can we have? We can have a brake, we can have accelerate, we can slow down, right? We were talking about certain states and behavior, right? Then we had also talked about why we are going for Java. We know it is a simple language. It is easy for anyone who has studied any object oriented programming, starting from C++. More or less the concepts are similar, and it is easier for anyone to adapt to it. Then it is secure, considered to be secure, because it is based upon trusting, not it is not trusting the programmer, giving it all the access, but it is based on protecting the programmer, right? And it is for developer productivity, rather than being like with your C++. Maybe it can be more efficient in terms of giving more access to the programmer, but here it is about more security. Then we had talked about it is considered to be very robust, right? Because it can run on a variety of system, and it has got some very good debugging tools which help you to track down your bugs and reproduce your runtime situation with the help of debugging, right? Then comes very important concept of multi-threading, which we'll discuss here also in detail if it is required in your syllabus, where multi-threaded means it is very useful in your interactive networked programs, where we can perform a number of we can run multiple instances of it, right? Multiple processes which are lightweight, also simultaneously, which and very smoothly we can run use for interactive systems. And multitasking is in multi-process synchronization can be achieved with the help of this multi-threading environment. Then another very important thing is your it is architecture neutral, right? Architecture neutral in the sense does not depend upon the hardware or the system on which it is running on. It can be it helps in your code longevity, as well as making the program portable, right? Even if your system upgrades, changes, or you're running the same code on some other program, once you have written it, you can run it anywhere and anytime, right? Then here, how it is possible? Because it is possible with the help of
your Java virtual machine, right? A JVM is being provided as an interface between your underlying hardware and your Java program. And this creates a virtual environment within which your program runs. Once you are written your program, you compile it, you get your class file, which is nothing but, so we call it also your bytecode, which is nothing but your highly optimized set of instructions, right? Which are independent, platform independent. They're not depending upon your underlying platform, right? And this code runs inside your Java virtual machine, which converts it into, it can be converted into your native machine language code, right? And this machine language code, native one, जो आपके, that becomes depending upon the system, right? आप इसको interpreted भी कर सकते हो, या JVM interpret करके भी आपके native language code में compile कर मतलब कर सकता है convert, or you can also translate it by using just-in JIT compilers, right? So these are the benefits with it. Then it can be used for distributed environments where networking and all is required. It is in your syllabus also. We'll discuss how your TCP/IP protocols, how they can be used for your RM, your remote method invocation features, and all, how you can access your resources such as files and all on networked environment. Then we had talked about in it is dynamic, right? In the sense that dynamically linking of code is possible in a safe manner, right? It can be fragments of code, bytecode can be updated dynamically also on your running in system. Okay, please mute yourselves and close your windows. Videos, please close. Right, these short things we had discussed why you are moving towards Java. Then we had talked about different platforms which are available. Five or four of them were there, right? We had talked about the standard edition, which is nothing but providing you the this is the part of your core APIs. Your standard edition is providing you, right, with which you can perform your you can develop simple programs for networking, security, database access, or you're creating your simple GUIs, right? So it comes, standard edition comes with your development tools and your deployment ways of simple Java programs. Then the most popular platform is your J2EE or Java Enterprise Edition, which is used for creating large-scale network-based applications, right, on multi-tiered architectures, right, MVC and all these architectures we have, right. These applications, web-based applications, are scalable. They are secure. They are running on your network environment, right? They can be used for developing your client server based and paradigm based web applications and all. Then micro edition is there, Java FX is there, which is not required for you all, right? Then we had talked about, we'll also do some practicals for it, how we can set the environment for this is all revision of the last class. Okay, please mute yourself. Keep yourself muted. Right, then we had talked about how we can set up the environment, which nothing, you simply need to download your Java SE development kit. We talked about what are the various things required on for any Java platform, and for everything, for every Java version we have got three things associated with it. First is your development kit, also known as the JDK. Then you have got your running environment, the JRE, and you have got your JVM, Java Virtual Machine, which is nothing but that the software components which have been implemented with the help of your Java runtime environment, right? The API is provided by JRE, and when you're downloading your JDK, your JRE is included in it. The runtime environment is also included in it. So simply we'll see in the practical classes how we can set up this Java environment can be set up simply by installing your JDK, which can be your Java Standard Edition SE JDK can be downloaded from your Oracle site, right? Oracle is providing you all these things, right? And you need to set your system path, right? You have to set your system path, and I guess many all of you must be knowing how to set your path. Going to your advanced system settings in your environment variables, you set the path till where आपने जहाँ पे JDK अपना install करा होगा, that part till bin,
राइट? आपने जो जहाँ पे जेडीके इंस्टॉल करा है, यू शुड बी एबल टू see it in your program files. Let me see if I have installed it on my system. Right, simply set the path we'll see in the class till JDK, and once it is available on your system path, it means you can access these JDK files which are required for which are containing the development toolkit for developing your programs, right? Once you set the path, which means you can access them from anywhere. Then you simply go to your command prompt and you can type java hyphen version. अगर आपका वहाँ पे वर्जन लिखकर आ जाए in CMD, which means your Java has been successfully installed. Okay, try this by yourself. If there is any problem, then we'll discuss. Right. To begin with, we will be using your very simple Java programs. आप लिख सकते हो in the help of your notepad. Right. You save it. You create a class. आप यहाँ पे because it is following object oriented programming in a very strict manner where every object is associated with it is an instance of a class, right? You have whether it is a simple program, that too also has to be based on your oops concept, right? तो आपको अपना class file बनानी पड़ती है, right? You have to create your Java file, and the Java file name has to be same as the class you are creating. We'll see some examples. राइट? आप अपने नोटपैड पे प्रोग्राम को लिखिए, जो क्लास का नाम होगा वही आपकी फाइल का नाम होगा, जिसमें अपने नोटपैड में आप लिख रहे हो। सेव इट विद द हेल्प ऑफ डॉट जावा and then you compile it with the help of your CMD क्योंकि path is already set, so it will be able to get all the required files from your JDK path set. आपने एक बार compile कर लिया तो you will be getting on the same path, you will be getting your bytecode or the dot class file. ये जो आपकी dot class file है, ये bytecode is platform independent. This is what makes it portable, right? आपने एक बार लिख लिया, आपने इसको compile कर लिया, तो आप इसको कहीं पे भी किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी ओएस पे आप इसको रन कर सकते हो। तो सिंपल यू विल बी स्टार्टिंग विद योर नोटपैड, देन for for maybe web applications or more complex Java programs which require you to debug the code in an efficient manner to see if there are any syntactical errors, right? Also auto completion option. With that, for that you have got certain integrated development environment. हर एक लैंग्वेज के साथ कोई ना कोई हमारे पास ऐसे IDs available रहते हैं। For Java, the most popular IDs which are used is your Eclipse, right? Then you have your NetBeans, and these are the most popular ones which are used. Then you also have got your IntelliJ का idea आपके पास रहता है, just like IntelliJ basically more used for Python codes, most popular, which we'll be seeing. We'll develop some codes with the help of Eclipse. ये आपको एक integrated environment देता है, जहाँ पे कोड की डिबगिंग एंड फास्टर आप कोड को इजी वे में लिख सकते हो, राइट? तो वी विल बी सीइंग सम आईडीज, मोस्टली वी विल बी वर्किंग ऑन एक्लिप्स आईडी फर्स्ट। अगर सिर्फ जावा सिंपल प्रोग्राम की बात करी जाए तो you just need the simple notepad. You need to have your JDK installed on your system, the path to be set in your environment variables. या अगर आपने बेसिक सेटअप कर लिया तो आप अपने प्रोग्राम को लिखिए, राइट? तो वी हैड डिस्कस्ड वन वेरी सिंपल प्रोग्राम ऑफ हेलो वर्ल्ड, राइट? सबसे पहले आप ऐसे ही प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, राइट? देन टॉकिंग ऑफ दिस वेरी सिंपल प्रोग्राम, राइट? यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल प्रिंट करना है your statement hello world, right? So first thing what we need to do, we need to declare a class. This public keyword is not required. If you can write it also, you can leave it also, right? And we'll discuss this later. आपकी by default class default access specifier also you can use, राइट? तो वी हैव योर क्लास विद द नेम ऑफ, यू हैव योर जावा क्लास जिसका नाम आपने क्या रखा है, मेन रखा है, या आप कोई भी एग्जांपल रख लो, कुछ भी रख लो। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू सेव योर फाइल। आपको जो अपना फाइल का नाम रखना है, इट हैज टू बी सेम एज योर क्लास नेम, ठीक है? यहाँ पे आपने मेन क्लास अगर रखी है तो आपका फाइल का भी नाम मेन डॉट जावा होना चाहिए,
राइट विद इन दैट द फर्स्ट मेथड विच योर कंपाइलर सर्चेस फॉर, अगर आप कोई भी जावा का सिंपल प्रोग्राम लिखोगे, सिंपल एप्लीकेशन बनाओगे, तो यू द मेन मेथड जो जिससे आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या आपका स्टार्ट होता है, जिसको कॉल करता है, वो आपका कौन सा मेथड रहता है जावा के केस में? इट इज योर मेन मेथड्स। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आल्सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस एग्जांपल, you don't need to go into the details of the keywords right now. Superficially आप बस सिर्फ समझे, when we will be more going into the details more of each and every keywords, then we will see more. अभी simply क्या है, मैंने बताया कि आपको यहाँ पे हर चीज in the form of classes and objects करनी पड़ती है, right? एक simple सा program भी आपको लिखना है just to print a statement, we need to create a class, right? And save this program with the name same as your class name, राइट? उसके विदिन जो सबसे पहला मेथड आपको आपको आपका जावा एप्लीकेशन जहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करती है, दैट इज योर मेन मेथड, राइट? इस मेन मेथड को सर्टेन कीवर्ड्स आर प्रीसीडिंग इट। व्हाट आर द कीवर्ड्स? पब्लिक, स्टैटिक एंड वॉइड। इसको हम थोड़ा बाद में डिटेल्स में देखेंगे। जस्ट फॉर अ इंट्रोडक्शन, पब्लिक क्या होता है? एक तरह का एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि बता रहा है कि ये जो मेथड है इसकी विजिबिलिटी इसके कहाँ तक रहेगी, राइट? सो पब्लिक का क्या हुआ कि इट कैन बी, दिस कोड कैन बी यूज्ड आउटसाइड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड आउटसाइड ऑफ योर क्लास आल्सो, राइट? ऐसे हमारे पास और भी हम एक्सेस मॉडिफायर्स आपके स्पेसिफायर्स पढ़ेंगे, लाइक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एंड योर डिफॉल्ट वन, बट पब्लिक मीन्स कि आपने इसको एक्सेस दे दिया है आउटसाइड द क्लास आल्सो। तो यूजुअली योर मेन मेथड इज प्रीसीडेड बाय पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। क्यों? क्योंकि इसको हमें यूज करना है आउटसाइड द कोड, क्योंकि प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले वो मेन मेथड को ही ढूंढता है, राइट? एग्जीक्यूशन के लिए वहीं से आपका स्टार्ट होता है रनिंग, राइट? then comes your next keyword, static। static हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आपने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। आपको हमेशा कोई कोई भी अगर किसी भी क्लास को यूज करना है तो उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। विल इन जावा we'll see how we can create an instance of the class with the help of a new keyword, राइट? लेकिन अगर आप एक एक विदाउट इंस्टेंशिएटिंग अगर आप यूज करना चाहते हो किसी भी क्लास का किसी भी क्लास को, तो वी हैव टू यूज द वी आपको कीवर्ड स्टैटिक अलाउ करता है कि आप कॉल कर सकते हो इस मेथड को विदाउट क्रिएटिंग एनी एनी इन पर्टिकुलर इंस्टेंशिएट करके आपको क्लास के मेथड की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि आपका यहाँ पे मेन मेथड जेवीएम सबसे पहले आपका ढूंढता है एग्जीक्यूट करने के लिए बिफोर एनी ऑफ द मेथड। इस मेन मेथड के अंदर ही तो आप अपने सारे ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे, जिनके थ्रू आप इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही आप उसके बिहेवियर्स यहाँ की मेथड्स को कॉल कर सकते हो, राइट? यहाँ पे हम क्योंकि मेन मेथड बिफोर एनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इज बीइंग यूज्ड, तो वी यूजुअली डिफाइन योर मेन मेथड टू बी स्टैटिक। ठीक है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं। रिटर्न टाइप्स हम देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी मेथड के कोई ना कोई रिटर्न टाइप रहता है, इफ इट इज गिविंग यू सम रिजल्ट्स, राइट? इन केस इफ इट इज नॉट रिटर्निंग एनी टाइप, जस्ट इन द केस ऑफ मेन, तो हम यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज हो जाता है? हमारा वॉइड। वॉइड का मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है? देन इसका अभी बहुत डिटेल में आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक एक तरह से समझ सकते हो। इट इज काइंड ऑफ अ पैरामीटर। आप यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहे हो इन द मेन मेथड, राइट? एंड विच इज अ एरे। एरे कैसे में पता चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पहले सीखी हो तो आपने देखा होगा कि एरेस को हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, राइट? एंड इट इज व्हाट काइंड ऑफ एरे? इट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग एरे। तो जब आप अपने सीएमडी से कमांड चलाते हो, आप अपना प्रोग्राम रन करते हो, इफ यू वांट टू पास सर्टेन आर्गुमेंट्स टू दिस मेथड, राइट? सबसे पहले आपका मेन मेथड ही ढूंढा जाता है, उसमें अगर आप कोई आर्गुमेंट्स को पास करना चाहते हो, दीज कैन बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ योर दिस ये जो आपने यहाँ पे एरे आपने पास करा है, args स्ट्रिंग टाइप का एरे, जो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आपके रिसीव आपका प्रोग्राम करेगा, इट विल बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ इस args एरे। तो कैसे वो रिसीव करता है, उसके हम कैसे पार्सिंग करते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की, राइट? एंड मतलब सीएमडी के थ्रू अगर आप रन कर रहे हो, एंड हाउ वी कैन यूज दोज आर्गुमेंट्स पास, वी विल सी हाउ इट कैन बी डन, राइट? फिर यहाँ पे हर चीज़ आपकी हर एक मेथड सभी सभी लैंग्वेज देखो, इट इज़ नॉट अनलाइक योर पाइथन, यहाँ पे कोई भी
इंडेंटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता. इट इज बेस्ड ऑन योर, आपका स्कोप ऑफ द मेथड हो, स्कोप ऑफ द क्लास हो, एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय योर ब्लॉक ऑफ कोड्स. ब्लॉक ऑफ कोड्स किसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेसेस. ठीक है, आप इन ब्रेसेस के विद इन अपने ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करते हो, नॉट बेस्ड ऑफ इंडेंटेशन. आप चाहो तो पूरा का पूरा कोड एक लाइन में भी लिख सकते हो. ठीक है, ये मेनली आपके ब्रेसेस से देखता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग से, कि कहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है. और उसकी पार्सिंग कैसे रहती है? सिंपल, विद द हेल्प ऑफ योर व्हाइट स्पेसेस के थ्रू आप सेपरेट करते हो अपने टोकन्स को, राइट. और आपकी लाइन कैसे सेपरेट होती है? विद द हेल्प ऑफ सेपरेटर सेमीकोलन, राइट. द सेपरेटर इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ऑफ योर लाइंस, राइट. तो आपको क्या करना है? सिंपल सा आप ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिएगा. अपने यहाँ जाकर जेडीके इंस्टॉल करिए, उसका पाथ सेट करिए अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड मेक अ सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट योर ये आपका कमेंट अगर डालना है कोई भी लैंग्वेज में हो तो यू कैन, हियर यू हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ कमेंट. आप सिंगल लाइन कमेंट्स डाल सकते हो. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर डबल स्लैश यू कैन राइट मल्टीपल लाइन कमेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर स्टार स्लैश स्टार, राइट. एंड ऑल्सो यू कैन क्रिएट जावा डॉक्स टू गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट एनी मेथड के बारे में अगर बताना चाहते हो तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लैश डबल स्टार स्लैश देन एंडिंग विद स्टार स्लैश इन दिस वे, राइट. और अभी कैसे प्रिंट कर रहा है? दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट हाउ टू प्रिंट एनीथिंग इन जावा. अभी बहुत ये कैसे इनका, ये क्या डॉट क्या है, आउट क्या है, प्रिंट है, इसको बहुत डिटेल में भी समझने की जरूरत नहीं है. फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट सिस्टम इज अ प्री डिफाइंड, ये आपकी प्री डिफाइंड क्लास है जो कि आपको सिस्टम आपके अपने सिस्टम को एक्सेस दे रही है. और आउट क्या बता रहा है? आप इसके सिस्टम के आउटपुट स्ट्रीम को यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो? और टू टू गेट एक्सेस टू योर कंसोल, राइट. आउटपुट स्ट्रीम आपका कंसोल से कनेक्ट करेगा, जहां पे आपको क्या काम करना है? यू हैव टू प्रिंट समथिंग ऑन द कंसोल. कंसोल मतलब अपने सिस मॉनिटर पे या जो भी आप कंसोल की तरह यूज कर रहे हो वहां पे प्रिंट करना है. क्या प्रिंट करना है? जो भी आपने स्ट्रिंग यहाँ पे पास करी है println मेथड में, राइट. एंड आगे प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट भी लिख सकते हैं. एलएन का मतलब क्या होता है? प्रिंटेड एंड चेंज द लाइन. तो ये आपका सिंपलेस्ट जावा प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का, जहाँ पे आप अपना क्लास डिफाइन करते हो, देन जिसका नाम आपने मेन रखा है. जिस नाम से क्लास बनाई है इंपॉर्टेंट थिंग, उसी नाम से आपका फाइल भी सेव करनी चाहिए. कैसे सेव करोगे? डॉट जावा करके. देन व्हाट वील डू, वील क्रिएट विद इन दिस क्लास फाइल, सिंपल सा हमने एक मेथड बनाया है. द फर्स्ट मेथड विच योर, जहाँ से एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट होता है, दिस इज योर मेन मेथड. Then you have to specify its access specifier, right? It has to be kept public in case of main. Why? Because we have to use it outside the class. We'll talk about other access specifiers also, like protected, private. Private का मतलब क्या हो गया? Outside the class उसको नहीं use करा जा सकता है. फिर आपके कुछ और keywords हैं, जैसे स्टैटिक वर्ड. अगर आप चाहते हो विदाउट इंस्टेंशिएटिंग एनी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास आप कोई मेथड को यूज करो, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टैटिक टाइप का, और कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो वॉइड है. एंड इसके विद इन हम क्या कर रहे हैं? वी आर सिंपली प्रिंटिंग. वंस यू हैव सेव्ड योर क्लास एज डॉट जावा क्लास, व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू कंपाइल दिस क्लास. ठीक, कंपाइल का मतलब क्या हो गया? आप जहाँ पे जिस डायरेक्टरी में सेव करे हो उस वहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, उस डायरेक्टरी तक का पाथ सेट करो, देन सिंपली राइट जावा सी मेन डॉट जावा. जावा सी का मतलब क्या हो गया? यू आर कंपाइलिंग दिस डॉट जावा प्रोग्राम, right. This will compile your code. If there are any errors in the code, that will be displayed on your console. If there are no errors, then you will get a dot class file. ठीक है, आपकी class file create होगी उसी path पे. फिर आप simply क्या करो? टाइप करो java and main. java main क्या करेगा? आपकी class file जो byte code आपका compile होकर आया है उसको run करेगा, और you will be getting what? Hello world as output on your CMD, on your console. You will get it as output. Right? Any confusion till now? तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? एक हमारा इट वाज सिंपली प्रिंटिंग. मेन आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जिसमें कौन से आपने मेथड डिफाइन करा था? मेन मेथड था, राइट. जहाँ पे आप अपना लॉजिक लिखते हो. देन यू कैन हैव इंस्टेंस वेरिएबल्स which will be the values which you are assigned to the variables which you declare in your class, right. And सिंस आपका मेन मेथड में कोई भी हम इंस्टेंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहते थे, तो वी हैड डिक्लेयर्ड इट एज स्टैटिक, राइट. देन फर्स्ट स्टेप व्हाट आई टोल्ड यू, व्हेनेवर आपको क्या करना पड़ता है? जेडीके
इंस्टॉल करना पड़ता है। जेडीके के अंदर आपका बेसिक जावा का कंपाइलर आता है, ठीक है? इस कंपाइलर से आप अपने कोड को कंपाइल करते हो। कंपाइल मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द बाइट कोड, राइट? बाइट कोड क्या रहेगा? एक आपके ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको देगा, राइट? दिस ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपने अपना कोड लिखा है, ठीक है? आप डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी, यू कैन ओपन योर डॉट क्लास फाइल आल्सो, आप देखोगे, आप उसमें आपको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस परसेंटेज तक अपने कोड को ऑप्टिमाइज करा है, ठीक है? तो जो जावा का मेन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का जो फीचर है, दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर जावा वर्चुअल मशीन, राइट? व्हिच इज नथिंग बट एन इंटरप्रेटर फॉर योर बाइट कोड, राइट? आपने जेडीके के अंदर आपको ये सब प्रोवाइड रहता है। जेडीके इज द आउटर, मतलब आप कह सकते हो, इट इज सुपरसीडिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट? विद इन द जेडीके यू हैव योर जेआरई, ठीक है? जेआरई का मतलब क्या हो गया? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसके अंदर अभी हमने देखा कि जावा सी मेथड आपका मेन क्लास योर फाइल नेम, ठीक है? तो आप क्या करते थे? कंपाइल करते थे, ठीक है? इसी के अंदर आपके डेवलपमेंट किट्स टूल किट प्रोवाइडेड रहता है फॉर राइटिंग योर कोड, right? You have for compiling your code, there are debugging options available, right? All these APIs are present within your JDK, right? तभी हम bin के अंदर आप फोल्डर में देखिएगा तो आपको सब दिखेंगी जो basic APIs required है for developing your code, all the packages they are available there, right? फिर आप अपना path set कर रहे थे, you were compiling with the help of your Java C, जिससे कि आपकी dot class file create होकर होती थी। Then we were running that class file, कैसे कर रहे थे? We were calling this Java, we were writing Java space followed by instruction, मतलब आप Java instruction लिख रहे थे, followed by your file name, right? All of you please mark your attendance, last 10 minutes are there. If needed, we'll keep some class on weekend. We were talking about कि आपका क्या क्या steps रहते हैं। All of you just ensure you have written your name and your roll number, and आप PC हैं या MC हैं in the chat. So three things associated with any Java platform: JDK, your JRE and JVM. JDK क्या है? Software for Development Toolkit आपको दे रहा है, developing Java applications हो, applets हो, ठीक है? और JDK का स्टैंडर्ड एडिशन उठाएंगे तो सिंपल जावा एप्लीकेशंस को आप क्रिएट कर सकते हो, एप्लेट्स क्रिएट कर सकते हो। उसका आप एंटरप्राइज एडिशन उठाओगे तो आप नेटवर्क बेस्ड मल्टी टायर्ड वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो, राइट? और आपको ये सारे टूल किट्स देगा फॉर डिबगिंग योर योर जावा कोड, राइट? देन डिबगिंग एंड डेवलपिंग योर जावा कोड। जेआरई आपका रन टाइम देता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपके जेवीएम को रिक्वायर्ड रहती है आपके जावा कोड को रन करने के लिए। एंड वर्चुअल मशीन इज, ये आपका मेन मेक इन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। क्या है इसमें? सारी टूल्स लाइब्रेरीज हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर, आपको जेआरई के जो एपीआईज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी वजह से आपका जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। वाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? Because it is giving you the virtual environment within which your program will run. एक बार आपने अपना जावा कोड कंपाइल करके क्लास डॉट बाइट कोड में उसे कन्वर्ट कर लिया, उस बाइट कोड को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इंडिपेंडेंट अपॉन विच सिस्टम यू आर यूज्ड फॉर यूजिंग फॉर कंपाइलिंग योर कोड, राइट? फिर उस सिस्टम पे जो इंस्टॉल्ड जेवीएम होगा, जो जावा वर्चुअल मशीन होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपके जावा के जो बाइट कोड है उसको उसके लो लेवल नेटिव मशीन लैंग्वेज कोड पे रन करना। तो उसके पास दो ऑप्शन है, उसको वो इंटरप्रेटर की तरह भी आपके कोड को नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो कम्स विद अ जस्ट इन टाइम कंपाइलर अवेलेबल विद इन योर जेवीएम एनवायरनमेंट, जो कि आपके जावा के सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है टू द नेटिव और द मशीन लैंग्वेज कोड, राइट? दिस इज नॉट द फीचर विच वाज अवेलेबल इन योर सी प्लस प्लस में। आप क्या करते थे? आपकी डॉट एक्सी फाइल अगर क्रिएट होती थी, so that exe file depended upon which प्लेटफॉर्म और विच आके, मतलब आप कौन सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, ठीक है? एक बार आपने कंपाइल कर लिया अपना सी प्लस प्लस का कोड, इट इज नॉट मीन कि आपने एक बार बना लिया तो आप हर जगह पे उसको यूज कर सकते हो। नो, हियर व्हाट एडवांटेज यू आर गेटिंग, योर सोर्स कोड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू, एट द टाइम ऑफ जो भी आप कंपाइलर यूज कर रहे हो, जावा सी जब आप करते हो, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ बाइट कोड व्हिच इज अ क्लास फाइल, राइट?
फिर दिस इज बीइंग देयर इन योर डेवलपमेंट टूल किट। फिर आपके डेवलपमेंट टूल किट के साथ ही आपका जेआरई भी रहता है, जो आपका रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। दो चीजें यहाँ पे एसोसिएटेड रहती है, कंपाइल टाइम रहता है, एक रन टाइम रहता है। कंपाइल टाइम का मतलब क्या हो गया, जो आपने सोर्स फाइल डॉट जावा में सेव करी है उसको आप डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द कमांड जावा सी फ्रॉम योर सीएमडी। राइट, आपने जैसे अभी मेन डॉट जावा फाइल सेव करी थी, राइट, आपने जावा सी जावा कंपाइलर यूज करा जिसने इसको कन्वर्ट करा बाइट कोड में। बाइट कोड आपका इट इज रनिंग विद इन दिस जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, राइट, विच इज मेकिंग इट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे उसको हमें इसके नेटिव कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जो कि मशीन डिपेंडेंट है। राइट, यहाँ पे आपके लिंकर एंड लोडर ये सारे काम होते हैं। क्लासेस विल बी लोडेड विच आर बीइंग कॉल्ड हियर, राइट। दिस फिर आपका बाइट कोड वेरीफाई करा जाएगा। इफ देयर आर नो एरर्स इन द कन्वर्टेड बाइट कोड, देन योर जस्ट इन टाइम कंपाइलर विल, आप चाहे जेआईटी कंपाइलर यूज करो, चाहे आप इंटरप्रेटर यूज करो, ये सब आपके रन टाइम एनवायरनमेंट में जेवी में प्रोवाइड करा है, जो कि इसको मशीन कोड में, जो कि इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस है, उसमें आपके कोड को कन्वर्ट करेगा। तो ये आपके स्टेप्स रहते हैं फॉर राइटिंग एनी जावा प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ योर जेडीके टूलकिट, compiling it, right? Compiling it will be converting it into a dot class file, which is nothing but your bytecode. Bytecode क्या है आपका? Highly optimized set of instructions हैं जो कि आपके जावा रन टाइम एनवायरनमेंट पे रन करने के लिए बनाए गए हैं। दिस जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का आपका implementation gives you your JVM Java Virtual Machine, which is nothing but giving you the runtime environment for running this bytecode। जो आपका bytecode बनकर आया है कंपाइल करने के बाद, उसको चाहे वो इंटरप्रेटर के थ्रू, उसके आपके नेटिव आपके हार्डवेयर पे तो आपका नेटिव कोड ही चलेगा ना, जो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू द नेटिव मशीन कोड व्हिच इज नथिंग द फॉर्म ऑफ zeros and ones। Because this is the JVM, it is making your code to be platform independent, right? देन आई थिंक इट इज इन योर सिलेबस इफ यू डू क्योंकि आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है, तो आप थोड़ा इसके कंपैरिजन खुद ही बता सकते हो। सी प्लस प्लस जब अपना कोड कंपाइल करते हो, जो आपकी एक्सी फाइल आती है, इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इन केस ऑफ जावा, नो, योर बाइट कोड एक बार आपने कंपाइल करके कर लिया, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी एनवायरमेंट, राइट। यहाँ पे एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी क्यों आती है? एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी इसलिए आती है क्योंकि देखिए जावा में आपके दो स्टेप्स हो रहे हैं। पहले आप उसको कंपाइल करते हो, बाइट कोड में कन्वर्ट करते हो, बाइट कोड फिर आपका जेवीएम इंटरप्रेट या कंपाइल करके नेटिव कोड में कन्वर्ट करते हो। डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, बट मतलब इतना इट इज नॉट दैट एफिशिएंट। दैट इज व्हाई योर gamings and all these embedded system coding is done in C++, but it is very efficient in case of अगर आप लार्ज एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बना रहे हो, जहाँ पे प्रोग्रामर को आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो विद मेमोरी एक्सेस एंड ऑल दीज थिंग्स, तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर डेवलपर प्रोडक्टिविटी बिकॉज it is completely strictly object oriented programming, right? I think less than 1 minute are left. Then if class ends, we'll continue from here. सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए आपकी सी प्लस प्लस ज़्यादा अच्छी रहती है फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, राइट, विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस, योर जावा इज मोर यूजफुल, राइट। सी प्लस प्लस में जैसे आपने बताया, आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा, यहाँ